السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ محترم ساتھی دوستو، ابھی جو ہم نے قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامرکم، اور جو تم میں سے عمرہ ہیں، حاکم ہیں، ان کا بھی۔ پھر اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ ورسولہ، اپنا معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دین پر ایمان ہے، اور یہ بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ محترم ساتھیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں بیان کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں تم سب جو ہے نا اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقہ مت۔ افسوس در افسوس ہے کہ جب مسلمان سے کچھ بن نہیں پاتا ہے، یا اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یا اس کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہوتا ہے، یا اس کے پاس جو ہے نا سمجھ نہیں ہوتی ہے، فہم نہیں ہوتی ہے، جس طرح سے صحابہ نے اپنا فہم اور بیان کیا ہے دین، تو لوگ ہی کہتے ہیں ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہے کہ بھائی فرقہ بنے گا، کہا ہے کہ بنے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بنا لو۔ کوشش تو انسان کی کرنی چاہیے نا۔ کوشش اگر ہم جو نا اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو نا کامیابی دے گا، کیونکہ ہم تو مسلمان لوگ ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اسی پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے قرآن پر، لیکن قرآن پر تو ایمان نہیں ہے، بہت قلیل لوگوں کا ایمان ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کو اگر ایمان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں آیت نمبر 39 میں بیان کیا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو ہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم جس کو بھی اللہ دین کی سمجھ دیا ہے، تو کوشش کریں گے تو اتحاد ہو جائے گا۔ کوشش کرتے رہنا ہے، کوشش تو کرتے رہنا ہے، جب تک ہم باحیات رہیں گے تب تک کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے سورہ نساء آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے آیت نمبر 59 پہ، تو اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ ایمان و اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے عمرہ ہیں۔ لیکن اب یہاں آگے اللہ نے بیان کیا، اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ تنازع کب ہوگا؟ جب ہم عمرہ کی اطاعت کریں گے، یعنی عمرہ سے امام یا اپنا رہبر۔ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اپنا معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ جب ہم ایسا کریں گے امت مسلمہ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملہ پھر دیں گے تو ہمارا اصلاح ہو جائے گا۔ پھر گروہ بندی، فٹ بندی نہیں ہوگی، کیونکہ گروہ بندی تب شروع ہوئی ہے کہ جب لوگ اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیے، لوگوں نے اپنا فہم بنایا ہے،
लोगों ने अपना बुजुर्ग बना लिया है, ठीक है। और ये शैतान के वसवसे हैं। शैतान कभी नहीं चाहता है कि इब्न आदम अल्लाह उसके रसूल के तरीके पे चले, क्योंकि जानता है कि जब अल्लाह उसके रसूल के तरीके पे चलेंगे ये कौम चलेगी, ये आदम का औलाद चलेगी, तो फिर इनके अंदर तनाजा नहीं रहेगा। फिर हमारा जो है ना मामला, जो हम चाल चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो फिर इनके सफ़ों में जो ना गैप नहीं होगा तो हम दाखिल नहीं होंगे। तो गैप करना और हमारे सफ़ों में इख्तिलाफ करना ये शैतान का काम है। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद रहे, ठीक है। बुजुर्गों के सहारा दे के लोग जो ना शिर्क में, बिदत में डूबे हुए हैं। जब आप कुरान उठा के आदमी देख ले तो इसमें सारा अल्लाह ताला ने पोल खोल दिया हुआ है। हमारा इख्तिलाफ तभी मुमकिन है मेरे मोहतरम, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कि जब हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे। अगर अपनी मर्जी चलाए तो हम गुमराह हो जाएंगे। पार्टी जब अपना दिमाग चलाएंगे कि फ़ला ऐसा कर रहा है तो हम करेंगे तो कौन सा बुरा है, फ़ला ऐसा कर रहा है तो हम करें कौन सा बुरा है, ठीक है। क्या नेकी नहीं है, क्या अच्छा काम नहीं? हमें कैसा पता कि अच्छा काम है मेरे मोहतरम? अच्छा काम वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या हुक्म दिया है, वो अच्छा काम है। या कुछ काम ऐसे सहाबा ने किया है और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तो ये दीन है। अगर उस जो हम अमल कर रहे हैं उस अमल पर अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नहीं है, अमल नहीं है, तो फिर वो दीन नहीं है। ऐसी तरह से हम भटके हुए मुसलमान हैं, हमारे सफ़ों में इख्तिलाफ हो गया है, जिसका जो है ना कुफ्र फ़ायदा उठाता है। पूरे दुनिया का कुफ्र जान चुका है कि ये मुसलमान जब तक इत्तेहाद पर रहेंगे, जब तक अपने नबी के दीन पर रहेंगे, तब तक हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब ये अपने नबी के दीन से दूर हो जाएंगे, इनके सफ़ों में इख्तिलाफ हो जाएगा, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, तब जो है ना हम इनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। आप तारीख उठा के देख लें कि जब तक मुसलमान मुत्तहिद रहे हैं तब तक किसी गैर कौम का ये हिम्मत नहीं हुआ कि उनको उंगली उठा दें। इसलिए कि आज गैर कौम एक मुसलमान के सामने मुसलमान की बुराई करता है तब वो बोलता है कि ठीक कह रहा, इसलिए कि उसको इल्म नहीं है। अब ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हम और आप ये पीछा छुड़ा लेते हैं कि इल्म नहीं है, या हम नहीं जानते हैं, या खामोश अख्तियार कर देते हैं। क्या ये उज्र अल्लाह के यहाँ कबूल होगा? नहीं कबूल होगा, हरगिज नहीं मेरे मोहतरम। ये उज्र अल्लाह के हरगिज कबूल नहीं होगा। कबूल ये उज्र होगा कि हम कोशिश करते रहें, कुरान खोल के देखें कि अल्लाह उसके रसूल ने हमारे लिए क्या बयान किया है, दीनी किताबें देखें, हदीसें देखें। अल्लाह अकबर कबीरा, एक हदीस लेने के लिए मुहद्दिसीन ने अल्लाह अकबर ज़मीनों के खाक छाने हुए हैं, पैदल सफ़र किए हैं। उस ज़माने में सवारी नहीं थी, पैदल सफ़र किए हुए हैं। सफ़र करने के बाद हदीस लिए हैं, वो भी उससे हदीस लिए हैं जिसकी ज़िंदगी के बारे में पूरी जो है उनको मालूमात है कि ये झूठा नहीं था, ठीक है, ये बिदती नहीं था, ये मुशरिक नहीं था, इसका हाफिज़ा सही था, ठीक है। ये सारी इल्लतें जब उसके अंदर नहीं पाई जाएगी, उसके ज़िंदगी के बारे में तहकीक करके फिर उससे बात लिए हुए हैं। और जब सही सनद से जो हदीस लिया हुआ है उसके बारे में बुखारी मुस्लिम में तो मसला ही नहीं है। बाकी दीगर हदीस तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसाई, इब्न माजा है, उसमें मुहद्दिसीन ने हदीस जमा के उसके बाद लिख दिया कि ये हदीस हसन है। आज जो ज़ईफ़ है मौजूद उस पर भी हुक्म लगा दिया है ताकि ये उम्मत गुमराही में ना फंसे। अब हमारे यहाँ बड़े सगरी के मुसलमानों का मामला ये है, इन मौलवियों का मामला है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ना हदीस कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, ना हदीस पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ दौरा कर लेते हैं, पाना पलट देते हैं, दौरा कर लेते हैं, पकड़ बन जाती है, आला हजरत बन गए और बनने के बाद जो है ना बस लोगों को गुमराह करते हैं।
कभी ये बयान नहीं करते हैं कि कुरान का ये आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, चाहे तिरमिजी में है। तिरमिजी में जब होगा, जब तिरमिजी शरीफ का हम हदीस बयान करेंगे तब उसमें लाजिम हुक्म होगा कि ये हदीस सही है, या इमाम तिरमिजी ने इसको सही कहा। ये बात कहना पड़ेगा तब जाकर उसकी बात मोतबर होगी। एक और बात है मोहतरम, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आजकल के मौलवी बहुत कम अमानतदार हैं, बहुत कम अमानतदार हैं। इल्ला ये कि जो अहले हदीस आलिम है, सलफ़ी आलिम है, वही अमानतदार है दीन के मामले में। वो साफ साफ बयान करते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है, ये मौजू है, ये सही है, ये हसन है। फलाने मुहद्दिसिन ने कहा कि हदीस ज़ईफ़ है, तो जो ज़ईफ़ है और मौजू है उस पर आम मुसलमानों को अमल नहीं करना है, मुसलमानों को अमल नहीं करना है। मौजू मैंने गढ़ी हुई बात किसी ने ऐसे कहे कि थोप दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो हदीस नहीं है। ज़ईफ़ का है, सनद कटा हुआ है, बीच में कोई रावी है जो क्या नाम है, उसका हाफिजा ख़राब है, या वो कज्जाब है, या कोई ऐसा है, या उसके ज़िंदगी के बारे में कोई झूठा था, या जो है ना बिदअती था, मुशरिक था, या हाफिजा ख़राब था। ये सब इल्लत उसमें पाई जाएगी तो उसकी बात नहीं ली जाएगी। अगर वो रावी जो ना ऐसा है तो वो रावी जो ना कह रहा है कि फलाने ने ऐसा फरमाया तो इसका मतलब झूठ बोल रहा, तो ये बातें उसकी नहीं ली जाएगी। मेरे मोहतरम, अगर आप और हम चाहते तो हैं लेकिन करना पड़ेगा। आप और हम ये चाहते हैं कि हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें, तो मेरे मोहतरम कुरान हदीस हमारे सामने होना चाहिए, इसलिए कि उस तरह से दीन समझेंगे जिस तरह से सहाबा ने समझा, तब हमारे सफ़ों में इत्तेहाद होगी। सहाबा कराम जब तक जिंदा थे तब तक उनके सफ़ों में इख्तलाफ था? नहीं था इख्तलाफ। वो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के दिफा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा इस्लाम के दिफा के लिए, मुसलमानों के दिफा के लिए, मजलूमों के दिफा के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आज तो मेरे मोहतरम, मेरे मुसलमान भाइयों, थोक के हिसाब से मुसलमान काटे जा रहे हैं। ना उनके दिल में तमन्ना है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इनके साथ इनके साथ वही करें जो हमारे साथ कर रहे हैं। इस्लाम है भाई, लोग मुसलमान कहता है कि वो कर रहे हैं तो हम थोड़ी करें। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे भाई? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है मुसलमानों तुमको कुरान में कि तुम उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और जो नहीं लड़ते हैं उनसे मत लड़ो। अगर वो लड़ते हैं तुमसे, तुम उनसे लड़ते हैं, अगर वो बोलते हैं कि हम तुमसे लड़ नहीं चाहते हैं, तो तुम उनको क्या करो कि उनके साथ जो ना फिर मत लड़ो, उनके साथ सुलह करो। अगर वो जो ना कोई ऐसा है जो बेवकूफ़ी में आकर तुमसे लड़ रहे हैं, तो उनको सही जगह पहुंचा दो जहाँ जाना चाहते हैं। ये इस्लाम है। ये कवायद और कानून किसी भी मजहब में नहीं है, किसी भी कानून में नहीं है, किसी भी संविधान में नहीं है, सिवाय इस्लाम में। आज तो ये हो रहा है कि एक आदमी किसी का मरता है तो 100 आदमी को कत्ल कर देते। ये कौन सा इस्लाम है? कौन सा ये कानून है? ये कानून अल्लाह का नहीं है, ये कानून लोगों का बनाया हुआ है। इसलिए मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे यही गुजारिश है कि सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है तो कुरान हदीस खोल के अपने आँखों से देखें। ये मौलवी कसीर मौलवी जो हैं, जो दूसरे तबके के मौलवी हैं, अमानतदार नहीं हैं, अमानतदार नहीं हैं। 99% जो है ना, ये दूसरे तबके के मौलवी जो अमानतदार नहीं, दिन में अमानतदार नहीं है। कुरान में ये है लेकिन खोल के देखो तो नहीं मिलेगा, हदीस में ये है खोल के देखो तो नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने अपने बुजुर्गों से ऐसा ही सुना है, खोल के देखा नहीं है, खुद खोल के कुरान हदीस नहीं देखा है। उनके बुजुर्ग ऐसे बयान करते हैं, उन्होंने रट्टी लगा लिया है और ऐसे ही जो है ना बयान करते हैं। ये दीन नहीं है मेरा मोहतरम। दीन कुरान हदीस का नाम है। ये कुरान हदीस का नाम है दीन कुरान हदीस का नाम है मेरा मोहतरम। दीन किसी बाप के जागिर नहीं है, ना हमारे बाप के जागिर है। इसलिए मेरे मोहतरम, हम आप भाइयों से ही कहना चाहते हैं कि मेरे भाई कुरान हदीस पढ़ो, तब हमारे सफ़ों में इत्तेहाद होगा, वरना नामुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान सुनते पढ़ने की तौफीक दे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को तो पहुँचाए ताकि उनको अल्लाह ताला समझ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।